Am I audible? Rohit Kumar, please reply. Am I audible? Am I audible? Please reply. Yes, sir. Okay. Rohit, ask your friends. Join the session quickly. Yes, sir. They are joining. Okay. So कल हमारी कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, यूपीएस फेलियर की वजह से क्लास कट गई थी. Okay, we managed to initiate restart the system, but again it failed. So sorry for the inconvenience caused in the last class. Okay, we will carry on in this class. Right. So in our last class, we have completed our naval ship gyroscopic effect on the naval ship. Okay. Today we will be proceeding to the next point, next topic. That is your bearing reaction in shaft. Okay. Okay. Bearing reaction on the shaft rotor system under gyroscopic effect. Okay. Now, please carefully observe this figure. You will find a disc is mounted in the center of a shaft, and the shaft is attached to the bearings, that is A and B, and fixed bearings, big supposed, and the bearing, and the disc is spinning with omega in a clockwise direction when viewed from your A point. Right? Are you able to observe this thing? Yes. This disc is rotating in this direction. I will draw a line diagram. This disc is rotating like this. Okay. Now if I form this Cartesian coordinate system here, and the precision is in this direction, and rotation is in this direction. So you can see this is the precision axis, that is axis of precision, right? This is axis of precision, and this is the plane of precision, ye wala. So because of this spinning and rotation and the precision, there will be a gyroscopic effect on this system, right? क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई. प्लीज रिप्लाई. अमन सिंह, आशुतोष सिंह. Yes, sir. Yes, Aman, why you have submitted the assignment multiple times? MCQ आपने कई बार सबमिट किया है, 2-3 बार. क्या दिक्कत है? सर एक ही बार तो ही है. अच्छा, उसमें मल्टीपल टाइम्स आ रहा है. अमन, आशुतोष, कुछ स्टूडेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स उसको सबमिट किया है. सर वो शायद MCQ 2 गया होगा मल्टीपल टाइम्स. ओके. अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए, इस साइड से मैं देख रहा हूँ, दिस इज रोटेटिंग इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ इफ यू ड्रॉ द वेक्टर फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप वेक्टर ड्रॉ करोगे, द पोजीशन विल बी लाइक दिस, and the direction will be from A to B or B to A. Tell me quickly. A to B. Yes, the direction will be A to B, and now you are saying that precision is in this direction. ऐसे कर रहा है precise. Okay, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना इसकी, तो ये इस तरह से आया. Yes or no? Now active gyroscopic couple will be like this, and reactive gyroscopic couple will act in opposite direction. So this is the opposite direction में होगा आपका gyroscopic couple. Now यहाँ पे आप फिगर्स रखेंगे, अपना थंब रखेंगे,
and you will see कि downward force will be acting on a point A. Yes or no? आप सर ये आशुतोष इन करने के लिए बोल रहे हैं। इन कर दिया आशुतोष को मैंने, ऐसे करके आप इसको रखो पोजीशन एंड दिस विल शो यू डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यस और नो? ये समझ में आया? समझ में आया? बोलते क्यों नहीं हो? सर एक बार और बता दो। ओके मुझे एक बार डायरेक्शन बताओ जरा, ओमेगा की कितनी क्या होगी, फाइंड आउट करो। यहाँ पे स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इसको कर्ल करके देखो ऐसे, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, सो इस डायरेक्शन में होगा। ये भी डायरेक्शन। यस और नो? नाउ प्रेसिशन इसका क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज प्रेसिशन के लिए क्या करेंगे? ये होगा। अरे क्लॉकवाइज तो इसी तरह से मूव करेगी ना Yes, घड़ी sir. आपकी, एंड दिस इज द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जो आपने लगाया है इसको मूव कराने में। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर थंब रखो और कर्ल उंगलियों को कर्ल करोगे, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन। यस और नो? सो दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे बात को? अगर यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पर अपवर्ड होगी, अगर यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड होगी, अपोजिट होगी दोनों रिएक्शन सपोर्ट्स पर। यस और नो? अरे हमारे प्लेन में हमारा क्या हुआ था, अगर नोज डाउन जा रही थी तो टेल अप हो रही थी, अगर टेल डाउन जा रही थी तो नोज अप हो रही थी, तो सेम तो यही हो रहा है। नाउ आगे देखो, ये देखो ये वाली फिगर बनी है ना, ओके जो भी मैंने बनाई वही फिगर बनी ना। यस यस सर। सर। नाउ जब हमारा ये जो वैल्यू आई, सी की वैल्यू आई है आई ओमेगा ओमेगा पी, दैट इज टॉर्क। जो हमें टॉर्क को कन्वर्ट करना होता है, हमारे किसी बॉडी पर टॉर्क लग रही है टी टॉर्क, अगर हमें रिएक्शन सपोर्ट्स पता लगाने के रिएक्शन सपोर्ट्स पे कितना होगा, तो हम टी बाय इसकी लेंथ जितनी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट विल गिव यू सपोर्ट यहाँ पर और यहाँ पर, एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ हो जाएगी प्लस टी बाय एल। तो अगर यहाँ पर हमारी सी टॉर्क है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट है, तो यहाँ पे अगर सी एल पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गई, यहाँ पर डायरेक्शन में आ रही थी ना, तो दूसरी अपर डाउनवर्ड में आएगी, तो यही तो हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ सी एल। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दोनों तरफ लिख दूं, तो ये मिलेगी सी बाय एल और ये मिलेगा माइनस सी बाय एल। इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां तक आया, ये वाली बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ओके नाउ अगर मैं आगे बढ़ता हूं, सो ये इस व्हील जो था ये वाला बीच में जो लगा हुआ है, इसका कुछ मास भी होगा mg, दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे 100 में निकालते थे, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी बीम है और यहाँ पे मेरे पास कंसंट्रेटेड वेट है, दैट इज मास mg विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सपोर्ट्स पे रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा? mg/2. यस mg/2 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ भी mg/2 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। टोटल फोर्स आपका
एल्जेब्रिक सम आपका वर्टिकल डायरेक्शन में 0 आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शंस पे mg/2 एक्ट करे। वेरी गुड। तो अब हम पूरे फोर्सेस हमने निकाल लिए हैं जो सिस्टम पे एक्ट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी गेट दिस फॉर्मूला दैट सपोर्ट ए पर, यानी कि फोर्स ऑन रिएक्शन फोर्स ऑन पॉइंट ए, दैट इज C/L अपवर्ड डायरेक्शन में एंड mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। C/L पॉजिटिव है तो mg भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बी पॉइंट पर हमारा ऐसे, एक सेकेंड। ओके, सही है ये। दिस इज करेक्ट। We are taking the not taking the reaction force, we are taking the actual force। समझे बात को? देख तो समझते हैं कैसे। यहां पर कंसंट्रेटेड वेट हमारा था mg, और हमारा जो रिएक्शन फोर्स लग रहा था mg/2, mg/2, ये रिएक्शन फोर्स था। लेकिन जो हमारा फोर्स ये C/L है, ये तो इसके ऊपर एक्चुअल फोर्स एक्ट कर रहा है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। ये हम डायरेक्ट जायरोस्कोपिक इफेक्ट फोर्स ले रहे हैं ना यहाँ पे इन पॉइंट्स पर, जो टॉर्क इस पे लग रहा है। तो उसके हम वैल्यूज जो ले रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे नेट फोर्स कंसीडर करना है, ना कि रिएक्शन फोर्स। समझे बात को? तो जब ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब mg/2 ऊपर से भी लग रहा होगा इस पर, तभी तो ये पॉइंट स्टेबल है। और इसको हम काट दें, इसको नहीं लिखें, तो मैं mg को अगर दो पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं mg/2 लिख सकता हूं। यस सर। सो वही यहाँ पे हुआ है। देखो इस पॉइंट पर जो अभी ऊपर देखो, अभी दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर mg/2 नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यहाँ भी mg/2 डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नाउ C/L अपवर्ड है यहाँ पे, तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा? C/L माइनस mg/2, और यहाँ पर दोनों एक डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा C/L प्लस mg/2। अब रिएक्शन फोर्स देखो, ये पहले अपवर्ड फोर्स था, देखो यहाँ पे जो ये अपवर्ड थी, जब हमने फोर्स निकाला ना, फोर्स देखो यहाँ फोर्स है, दिस इज द फोर्स। इसका रिएक्शन अपोजिट हो रहा है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है नेट फोर्स, तो इसका रिएक्शन डाउनवर्ड में होगा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू वही रही। अगर मैं नेगेटिव साइन कर देता, साइन चेंज, तो मेरी वैल्यू आ जाती mg माइनस C/L, जो अभी हम निकालते तो वही आती। यू कैन सी दिस FA एंड RA, द चेंज इज ओनली ऑफ द साइन और द डायरेक्शन। अपवर्ड थी, रिएक्शन डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर फोर्स अपवर्ड थी तो रिएक्शन अपवर्ड हो गया, राइट। सो फ्रॉम दिस, हमने जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, वो इसी फॉर्मूला बेस्ड था। नाउ यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, दैट एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। ओके, यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। समझ में आया? यस सर। So this is the question asked in GATE 2019. Similar question is asked. You have been given, that is mass and radius, and L is given to you. So you have to find all these values. Finding the reaction force. View देखो अब यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो ये वाला आप एक बार ट्राई कर लेना। गेट 2019 आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देन यू कैन गो विद दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ व्हीकल। हमारी गाड़ी है जो, उसके टायर्स भी घूम रहे हैं,
and we are also turning it left and right. So what type of force, gyroscopic force, will be acting on the vehicle? We will be looking into it, right? That is the stability of a two-wheeler. अभी हम बाइक की बात कर रहे हैं. Stability of a two-wheeler vehicle taking a turn, right? Now see this. This is the actual position when you are driving up your bike in a straight path. Okay, this is your front wheel, this is your rear wheel. Okay, and this is your engine. Now if you tilt it, जैसे आप मोड़ोगे उसको, आप देखते हो कई बार आपके जो जितने भी राइडर्स होते हैं ये अपनी बाइक को झुकाते हैं जब मोड़ते हैं, to reduce the force, centrifugal force को reduce करने के लिए. Now when we tilt it, certain forces will start to act on the body. कौन कौन सी forces हैं? देखो, mg force, that is weight, is acting on this. Yes or no? Downward force mg. Yes, sir. Yes, sir. और कौन सी फोर्स है इस पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कि नहीं होगा? बिकॉज इट टेकिंग अ टर्न. Yes, v sir. स्क्वायर बाय आर, और यस, और आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हो. दैट इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन इट, m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर. नाउ एक्सिस प्रिसीजन का, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके भी कम होगा ना. जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमा रहे हो, वो हम देख रहे थे, पहले से देखते आ रहे हैं कि एक हमारा स्पिनिंग की होती है, एक हमारी वेलोसिटी होती है प्रिसीजन की, जिस डायरेक्शन में उसको चेंज कर रहे हैं, राइट? सो देयर विल बी अ जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन योर बाइक्स आल्सो. लेकिन अभी हमने क्या किया है, इसको मिनिमाइज किया हुआ है. जो हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना, उसको हमने परपेंडिकुलर नहीं होने दिया है अपने मोशन की. आप देखोगे बाइक्स के जो इंजन होते हैं वो आपके मोशन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं. यस और नो? Yes, sir. कभी आपने एक बाइक का इंजन देखा है? जैसे ये बाइक है, सपोज कीजिए दिस इज योर बाइक, दिस इज योर व्हील एंड दिस इज योर इंजन. तो इंजन ऐसे स्पिन कर रहा होता है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये आपका मोशन है. अगर ये मोशन की डायरेक्शन से ऐसे, ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट बहुत भयंकर होता. ओके, सो टू मिनिमाइज दिस जायरोस्कोपिक इफेक्ट, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपके इंजन की शाफ्ट रखी जाती है. Now these are some terminologies we will looking into. That is mass of vehicle m, small m, and its rider. Now w is the weight of vehicle and its rider multiply by g, हमने multiply कर दिया. We are considering the cumulative mass of the rider and the bike, that is m, and the weight, or you can say the force, because of the mass, is mg. Height of the center of gravity, and rw is the radius of wheels, r is the radius of track, कर्वेचर जिसके अराउंड ये कर्व ये आपका जो है टर्न ले रहा है. दैट आई ओमेगा इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील, एंड आई ई इज द मास मोमेंट इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, और इंजन को कह सकते हो. नाउ ओमेगा डब्ल्यू इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन. नाउ इंजन की जो स्पीड है और जो आपकी टायर की स्पीड है, दोनों को रेशियो को जो हम कहते हैं, दैट इज गियर रेशियो, दैट इज ओमेगा ई बाय ओमेगा डब्ल्यू. ये आपने गियर्स में भी पढ़ा होगा, गियर बॉक्स में ये रेशियो बहुत मैटर करता है. व्हाट इज द गियरिंग रेशियो? v इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, और मैं एंगुलर वेलोसिटी को अगर r से मल्टीप्लाई करूं, देन आई विल गेट द लीनियर वेलोसिटी. थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ हील इज द इंक्लिनेशन ऑफ व्हीकल टू द वर्टिकल फ्रॉम फॉर इक्विलिब्रियम. कि आपका जो व्हीकल है, वो जो
वर्टिकल से कितना इंक्लाइंड हुआ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ हील, राइट। here theta is the angle of heel, you can see. Now gyroscopic effect निकालने के लिए we have v, your linear velocity is equal to the rotation velocity of your wheel multiplied by the radius. Okay, similarly then wheel की जो हमारे spin की velocity है will be getting v by rw, एंड इंजन की आ जाएगी हमारा गियरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि हमारे पास गियरिंग रेशियो देखो क्या है, डब्ल्यू ई बाय डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, अगर हमारे पास डब्ल्यू ई आ जाए वी कैन फाइंड डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जी बाय डब्ल्यू ई, और वी कैन फाइंड आउट डब्ल्यू 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 बाय इज इक्वल टू डब्ल्यू ई बाय जी। सो सेम यहाँ पे लिया है हमने, दैट डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू एंड जी मल्टीप्लाई बाय वी बाय आर ओमेगा आर डब्ल्यू। ओके, now moment of inertia, that is I omega is equal to, दो व्हील है हमारे पास तो 2 इंटू आई डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस माइनस आई ई इंटू डब्ल्यू ई। ओके, समझ पा रहे हैं? ये स्टूडेंट्स एक बार दोबारा समझा दो जी, पिछली क्या बार। समझ में नहीं आया बताओ मुझे। सर ये जो आपने अभी समझाया है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। इफेक्ट जायरोस्कोपिक इफेक्ट का ये तो पूरे जब से स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या इफेक्ट होगा। मतलब जो आपने अभी बताया ना ये सर, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताया है सर, उसको अच्छा, दोबारा बता दीजिए। जब फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। ओके, एक मिनट में देखता हूँ, अगर ये मैंने थ्योरी में लिखा होगा अपने नोट्स में तो वहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 4 व्हीलर का तो है, 2 व्हीलर का देखना पड़ेगा एक बार। यस, ये रहा है इसमें। नाउ सी, एक बार ये पढ़ो थ्योरी, ठीक है, एक बार ये थ्योरी पढ़ो। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। देखो यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील जो लिया है इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और उसके सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू लिख दिया है, दैट इज डिनोटिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, एंड ओमेगा डब्ल्यू द स्पीड ऑफ व्हील। अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय, अगर मैं उसको स्पीड रेडियस ऑफ व्हील से करूं, देन आई विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, दैट इज द सिंपल कन्वर्जन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आई इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर इंजन, दैट इज क्रैंकशाफ्ट, एंड ओमेगा ई इज द स्पीड ऑफ द इंजन। अगर दोनों का रेशियो निकालूं, दैट इज ओमेगा ई, यानी कि रोटेशनल स्पीड ऑफ योर इंजन क्रैंकशाफ्ट डिवाइडेड बाय द रोटेशन ऑफ योर व्हील is equal to psi, that is gear ratio, or you can represent by g. Is that clear? यहां तक सबको समझ में आया? यस, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया सर। तो फिर रिप्लाई कौन करेगा? सबसे ज्यादा टाइम आप खराब करते हो इसी बात पे, मैं पूछता हूं आप जवाब नहीं देते हो। आगे तो ठीक है, नहीं तो पूछो ना, चुप रहने से मुझे क्या पता चलेगा। ओके, नाउ v इज द वेलोसिटी ऑफ टर्न, r इज द रेडियस ऑफ टर्न, कि टर्न ले रहे हैं हम कितनी स्पीड से ले रहे हैं,
एंड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका टर्न का वो क्या है, कर्व का कर्वेचर कितना है, और कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। सो ओमेगा पी इज इक्वल टू वी बाय आर, h is equal to the height of the center of gravity from ground under upright situations। तो दिक्कत क्या है, आप सिर्फ क्लास में जो टीचर पढ़ा देता है वही पढ़ते हो, उसके अलावा आप एफर्ट डालते ही नहीं, जीरो है आपकी तरफ से आपका एफर्ट। ऐसा नहीं होता है, जब मैं पढ़ा दिया आपको रिवाइज करना है, आपके पास बुक्स मैंने भेज दिए, रिसोर्सेज आपके पहले अवेलेबल है, आप रिवाइज करते नहीं हो, ये सोचते हो सारा टीचर पढ़ा देगा। टीचर पढ़ा देगा लेकिन आपको रिवीजन भी तो करना है, कुछ पॉइंट्स आपको खुद से भी जो है याद करने हैं, कुछ चीज आपको खुद से भी पढ़नी है। अगर मैं छोटी छोटी बताता रहूंगा v इक्वल टू आर ओमेगा, बस तो हो गया सिलेबस फिर तो। ये 12th का 9th 10th का कॉन्सेप्ट है, 10 बार बताता हूँ आपको समझ में नहीं आता। यस और नो, सारे रिप्लाई करो, अदरवाइज आई विल कैंसिल दिस क्लास। Yes, sir. यस आशुतोष, अमन, इनविटेशन भेजूं? Yes, sir. Yes, यस सर। बच्चों खुद से भी पढ़ना होता है, थोड़ा रिवीजन करनी होती है, ताकि कोई चीज समझ में नहीं आ रही क्लैरिटी आए उसमें। दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक चीज आपको बेसिक से बताऊं, हर बार इसी बेसिक से बताऊं। अब ये रेजोल्यूशन है, मैं हर बार बताता हूं आपको वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे करने हैं। अब मैं ये चीज भी समझाने लग जाऊंगा आपको, वेक्टर कंपोनेंट इसका ये है, ओमेगा कॉस थीटा ये है, साइन थीटा ये है, बस हो गया काम। मैंने हर बार आपको ये चीज समझाया। अब मैं सीधा बोलूंगा कि अगर ये इस तरह से टिल्ट होता है, अल्फा इज द एंगल ऑफ टिल्ट, देन यू फाइंड दैट दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन जो है इधर से लगेगी, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगी, और इसको जो बैलेंस कर रहा है दैट इज ओमेगा r cos थीटा है, और डाउनवर्ड में आपकी mg है, और इसका जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज ओमेगा sin अल्फा, राइट। सीधा निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको समझ नहीं आता आप जाके उसको दोबारा पढ़ो, ओके। Yes, sir. Okay. नाउ यहाँ पे हमारा जो कपल के फोर्स होता है, कपल निकालते हैं हम व्हील के लिए, व्हील के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। नाउ यहाँ पे दो व्हील है, तो ओमेगा आई जो है वो दो के लिए आएगा, तो 2 i ओमेगा इसलिए आया हुआ है यहाँ पे, 2 i w, आई मीन w मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, मल्टीप्लाई बाय दो व्हील है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। नाउ ओमेगा पी इज द प्रिसीजन, दैट इज v बाय आर, जिस टर्न पे हम ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिस पे प्रिसाइज हो रही है बाइक, उसका v बाय आर, दैट इज ओमेगा पी। यस और नो? और इसका जो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, उसका देखो हॉरिजॉन्टल वेक्टर क्या आ रहा है, दैट इज ओमेगा कॉस अल्फा। अब ओमेगा कॉस अल्फा को हम यहाँ पे रखेंगे ओमेगा की जगह, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी दैट इज जायरोस्कोपिक कपल ऑन द व्हील इज इक्वल टू 2 i ओमेगा ओमेगा w cos अल्फा इनटू ओमेगा p, राइट। समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली इंजन के लिए जाएगा ओमेगा सी, सॉरी सीई इज इक्वल टू आई ई ओमेगा ई कॉस अल्फा इनटू ओमेगा पी। यहाँ पे देखो दो नहीं आया क्योंकि इंजन एक ही है आपका, तो नेट इफेक्ट कितना होगा, अगर हम लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिपेंड करेगा ना प्लस माइनस का साइन, तो C इज इक्वल टू सी ओमेगा प्लस माइनस सीई, तो वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ पे, तो 2 i ओमेगा ओमेगा w प्लस माइनस आई ई डब्ल्यू ई इंटू ओमेगा पी कॉस अल्फा, क्योंकि ओमेगा पी जो है कॉमन है एंड कॉस अल्फा इज कॉमन, इट इज टेकन आउट, तो हमारी वैल्यू ये बन गई। नाउ ये हमारा डिपेंड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का आएगा, द इंजन रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हील, तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर इंजन रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हील देन वी टेक द नेगेटिव साइन, right? So this is the couple force, or the can say the gyroscopic couple acting on a bike or a two wheeler, ठीक है। now stability के लिए at point A देखो आप, for stability net movement हमारा 0 होना चाहिए, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है A यहाँ पे, नेट टॉर्क
और नेट फोर्स इसके अबाउट 0 होना चाहिए। तो mg इंटू h साइन एल्फा, देखो mg यहाँ पे है ना, हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। तो mg Yes, से sir. इस पॉइंट की मूवमेंट जो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, तो mg से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो mg इंटू h साइन एल्फा, दिस इज h साइन एल्फा, ये वाला देखो। मैंने दो Yes, चीज sir. आपको बताई थी, एक तो फोर्स कहाँ लग रही है और उसका लाइन ऑफ एक्शन। देखो ये mg है और a पॉइंट के अबाउट निकालने हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये h है तो दिस इज h साइन एल्फा और दिस इज h cos एल्फा। तो मुझे निकालना है mg इंटू h साइन एल्फा, नेट मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट 0, प्लस कपल फोर्स इंटू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एच कॉस एल्फा। यहाँ देखो इस पॉइंट से इसका जो है दैट इज एच कॉस एल्फा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं दोनों इक्वेशंस को एंड आई विल पुट वैल्यू ऑफ सी हियर, देन आई विल गेट tan अल्फा इज इक्वल टू 2 ओमेगा आई ओमेगा w प्लस I E into W into omega P plus mv square by R into H by mgh. This is the value of alpha, maximum value of alpha, जितना उसको हम बाइक को टिल्ट कर सकते हैं और वो आपका जो मोशन है वो फेल नहीं होगा और आपकी बाइक स्टेबल रहेगी। अगर इससे ऊपर जाता है देन देयर विल बी स्लिपिंग और द फेलियर ऑफ बाइक, बाइक स्किड कर जाएगी। समझे ये क्या निकाला है हमने? Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आया? Yes, sir. Yes. यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज नाउ। ये जो आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन टू व्हीलर है इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, देन आई विल गो फॉर द 4 व्हीलर। आज हमें खत्म करना है टॉपिक। जल्दी लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। लिख लिया? डन? बोलो बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. यस, अमन सिंह। Yes, sir. ओके, नाउ अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं तो नंबर ऑफ व्हील्स हमारे पास कितने हैं? 4. 4. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका अगर मैं बात करूं पूरी व्हीकल का कितना हो जाएगा? दैट इज 4 आई ओमेगा और आई डब्ल्यू व्हील का, क्योंकि 4 पहिए हैं उसमें, 4 पहिए जो है कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। सो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का दैट विल बी आई ओमेगा, और सॉरी आई ओमेगा कह रहा हूं बराबर, आई इंटू व्हील दैट इज सबस्क्रिप्ट में आई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 4। तो जैसे हमने उसमें कपल निकाला था 2 व्हीलर में, 2
इंटू आई ओमेगा एंड ओमेगा डब्ल्यू इंटू ओमेगा पी, यहाँ पे आ जाएगा 4IW इंटू ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा पी। और इंजन हमारे पास एक है, क्रैंकशाफ्ट एक है, तो इंजन का जो होगा कपल ड्यू टू इंजन की रोटेशन की वजह से, दैट इज CE इज इक्वल टू IE ओमेगा E इंटू ओमेगा पी। ओके, दिस ओमेगा पी इज Yes, sir. कांस्टेंट फॉर बोथ व्हील एंड इंजन, बिकॉज आपकी जो गाड़ी है वो सेम उस पे मूव कर रही है। अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को, जो आपका व्हील्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको नेग्लेक्ट कर दूं, वो इतना ज्यादा नहीं है, देन द ओमेगा पी विल बी सेम। तो टोटल मेरे पास जो कपल फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू CW प्लस CE, और ये साइन डिपेंड करेगा किस पे, द रोटेशन पे। अगर द इंजन रोटेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हील तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन इफ इंजन रोटेट्स इन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द व्हील। ओके, नाउ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x। ओके, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी हमारी पास, फोर्स विल बी इक्वल टू C/2x। ओके, एंड सिमिलरली ऑन आउटर व्हील विल बी C/2x डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो इनर व्हील्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आउटर व्हील्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, राइट? अगर Yes, लेफ्ट yes, टर्न sir. ले रहे हैं हम, तो देखो आप किस डायरेक्शन में आएगी, वी आर टेकिंग लेफ्ट टर्न। ये डिपेंड करेगा आपके जो जो इंजन की जो रोटेशंस हैं वो किस डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि इनर व्हील्स पे जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इसका मतलब आपका इंजन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, Yes, sir. तभी तो डाउनवर्ड आई है, रिएक्शन अपवर्ड आ रही है। ठीक है, सो इंजन की स्पिन के हिसाब से आप निकाल सकते हो, लेकिन रिएक्शन फोर्स आप सीधा निकाल सकते हो, दैट इज कपल डिवाइडेड बाय 2x। जैसे वहां पे हमने C/L किया था ना, यहाँ पे भी हम डिस्टेंस बिटवीन दोनों के एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज x, वी कैन कैलकुलेट द फोर्स इज इक्वल टू C/2x। सिमिलरली ऑन आउटर व्हील्स दैट इज C/2x, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। जो इनर पे होगा आउटर पे उसका अपोजिट होगा। अगर आउटवर्ड पे जो आउटर व्हील्स हैं उन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो इनवर्ड इन जो अंदर वाले व्हील हैं उन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। नाउ इन और आउट व्हील्स क्या है, इन वर व्हील्स वे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायरेक्शन है ना, जिसके देखो अगर मैं ऐसे ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ ना ऐसे, और मैं इधर टर्न ले रहा हूँ ऐसे, तो ये वाले व्हील्स जो है इनर व्हील्स हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ टर्न, तो ये वाले इनर व्हील्स हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. तो इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक बार बुक से एक बार इसको देखो, रिवाइज करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बताओ, अगले लेक्चर में बताना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सर सर हाँ बोलो। सर ये नोट्स भी सर शेयर कर देना। हाँ, नोट्स मैं अभी भेज देता हूँ आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस बोलिए एक बार अपनी। अमन, अमन सिंह, अमन सिंह, Yes, sir. ओके अमन सिंह। आशुतोष, यस सर। चंचल, जतिन आर्या, कौशल, मोहित अधाना, Yes, कुमार, sir. नीतीश मिश्रा, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, Yes, sir. तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन। प्रेजेंट सर। ओके, सो इसको रिवाइज कीजिए। ओके
इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। और जो एमसीक्यू है वो सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करिए, आज उसकी लास्ट डेट है। आई विल बी जो है